everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. As the title suggests, this reading is about which career or which path is going to suit you the best. Right? It's about your career, it's about your dharma, it's about your karma, it's about your artha as well. Artha is basically where you gain money. How will you gain money in your life? Dharma is which you have to do no matter what, irrespective of your artha, irrespective of your karma. You have to do it. And of course, karma will be involved because through karma only you will perform your dharma. So it's all about these things. Basically we are going to focus on career. But with career, we are going to see that what is your dharma and what's the path of your soul in this lifetime. So, yeah. यहाँ पर जो है आपके पास 3 पाइल्स है और आपने अपनी पाइल जो है स्टोन से सिलेक्ट करनी है. एक्चुअली स्टोन्स आपको सिलेक्ट करेंगे. आपने सिर्फ 30 सेकेंड्स लेने हैं और इन 30 सेकेंड्स में जो भी पाइल, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ बुलाता है, उस पाइल को जो है आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करना है और अपनी रीडिंग सुननी है. राइट? आपको चूज नहीं करनी अपनी पाइल, आपको चूज नहीं करना अपना स्टोन. जो स्टोन है, जो पाइल है, वो आपको पिक करेगी 30 सेकेंड्स, जस्ट 30 सेकेंड्स में. ऑलराइट, सो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी. वैसे जो पाइल नंबर 1 है, इट्स ऑफ ब्लैक स्टोन. Alright, pile number 2 is of this Jupiterian stone, brown cream stone, and pile number 3 is of your orange stone. Right? Pile number 1, pile number 2, pile number 3. मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. Alright. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the black stone here. And yes, let's just get started with your reading. यहाँ पर आपको कौन सा करियर जो है सूट करता है, इसके बारे में टैरो क्या गाइडेंस देना चाहता है, क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए. पाइल नंबर 1 को कौन सा करियर, कौन सा पाथ जो है सूट करता है. Alright, I see magician. Alright, you have the skills here, the skill set for sure. Then I see the sun here. Then I see the 7 of swords. And then I see queen of swords. Okay. All right. So pile number 1, यहाँ पर आपके पास स्किल सेट्स भी हैं और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप हर चीज़ में अच्छे हो. मे बी यू आर एन ऑल राउंडर एंड somehow because you are an all rounder, it confuses you कि कौन सा पाथ, कौन सा करियर मुझे अपने लिए पिक करना चाहिए, चूज करना चाहिए. बिकॉज you are multi talented here, you have a lot of skills and that confuses you that what path to choose, what path to pick. At the same time, maybe because your father is saying, because sun represents father authority, they tell you that you should go for government job. That can also be the case. Somehow your father or any masculine energy tries to control your career, tries to guide you in your career, but you may not really want to do that what they want. कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो जिस करियर में जाना, वो करियर आपके पेरेंट्स, स्पेसिफिकली आपके फादर या कोई फादरली फिगर वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. That can be the case here because we have sun, but you are multi-talented here. And I also feel that you can have Sun Mercury conjunction in your case. Sun Mercury conjunction is known as Buddha Yoga in certain houses, and it's a yoga of
being academically strong. But if this conjunction is occurring in the 8th house, then it won't be considered as a Buddhaditya yoga, and it shows that your analytical logical skill, or whatever you learn, whatever you memorize, it goes into the black hole, because 8th house represents the black hole. Until and unless इस पे Jupiter का aspect हो, or I should say Jupiter, or actually Jupiter only will save this conjunction up, will save your intelligence. But if there is no aspect of Jupiter over this Sun and Mercury, then definitely then a person's intelligence will go into black hole, or the person will only use their intelligence when they are dealing with occult, mysticism, astrology, tantra, black magic, white magic, tarot, or even something about murder mysteries, UFO, aliens. तभी वो person जो है अपने intelligence use करेंगे. And यहाँ पर आप काफ़ी skilled नज़र आ रहे हो. It can happen that you were academically strong, or somehow you just have many skills. Pile number 1, you have a lot of skills and you just don't know where to put your energy in now. And because we have Sun, and it's the second card which came out, I would really say that you will try to get into government as well. You will try to get a government job. That's there. You will try to get a government job, and that too a powerful government job. And you can go for exams like UPSC. You would want to clear UPSC, because यहाँ पर भी जो है इस पर्सन के पास ये जो मैजिशियन कार्ड है, एक जगह है, मतलब एक टेबल है स्पेसिफिक इनके लिए ही, और स्पेशली इन्हीं के लिए ये टेबल है, एक डेजिग्नेटेड टेबल है, एक जगह है. And this person have this big giant book, and this person is very much skilled, they know what they are doing, and I feel that you will try to get a very good government job, not just a simple normal job, but you will try to clear UPSC here. And some of you will also clear UPSC, some of you will, that's there. I'm not saying everyone, but कुछ आप में से जो clear कर पाओगे UPSC, and you can become an IAS or IPS officer. बिकॉज वो जो एक हिम्मत है, या वो अंदर जो एक फायर है, दैट पैशनेट फायर इज डेफिनेटली देयर. एंड बिकॉज सन एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा we don't need astrology or tarot to understand sun. Sun gives us light. Sun is the ultimate source of energy. जहाँ पर sun है वहाँ clarity है, वहाँ darkness रह ही नहीं सकती है. And even हम कहते हैं ना कि अरे ये चीज़ धूप में डाल दो, germs जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हम कहते भी है. सो इट ऑल्सो बर्न्स अवे द नेगेटिविटी, इट बर्न्स अवे द जर्म्स और किल्स द जर्म्स. सो यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए अनक्लियर नहीं होंगी इन द फ्यूचर. बट आई डू सी थ्रू अ फादरली फिगर you may find something in your life. You will find your path in your life, career path. But yeah, I do see government here. और वो एक हिम्मत है, वो चीज़, वो एग्ज़ाम क्लियर करने की पॉजिटिविटी है. बिकॉज सन इज़ अ येस कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. सो यू आर सेइंग येस टू अ गवर्नमेंट जॉब, यू वांट इट, यू वांट टू डू इट, दैट्स ऑल्सो देयर. बट आई डू सी सम ऑफ यू विल से दैट हम वो चीज़ नहीं करना चाहते, बट हमारे फादर या फिर कोई फादरली फिगर हमारी लाइफ में जो है ज़बरदस्ती है कि इस चीज़ में जाना ही जाना है, और जबकि मेरा मन नहीं है. वो चीज़ भी यहाँ हो सकती है, बिकॉज सन के अगर आप बहुत करीब जाते हो, सन आपको बर्न कर देगा, राइट. अवे हो सन के तो सन इज़ गोना गिव यू लाइट. इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू सन, ऑफकोर्स सन विल बर्न यू. सो एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक फादरली एनर्जी कैन इवन बर्न यू बिकॉज यू आर नॉट डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम. दैट कैन इवन हैपन हियर. And then I see the 7 of Swords, and 7 of Swords is like running away from responsibilities. It's about a person जो आपको धोखा दे सकते हैं, but because अभी ये reverse में है, so I feel that you will have a lot of trust on yourself. You will have a lot of trust in yourself that you will be able to do it, you will be able to complete it, you will able to win, you will be victorious. एक वो trust ज़रूर है. और आप एक ऐसा काम करना चाहते हो जो आपको बताने में शर्म ना है कि मैं ये काम करता हूँ.
इवन दो एट टाइम्स हम ये देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं बट वो बता नहीं सकते कि वो क्या काम ऐसा करते हैं जो वो इतना अच्छा अर्न करते हैं। एक होता है जानबूझ के ना बताना कि किसी को पता ना लग जाए फिर ये मेरे जैसा काम ना शुरू कर दे, और एक होता है कि एक पर्सन थोड़ा शर्म महसूस करता है कि वो क्या काम कर रहा है पर उसे पूरा गेन हो रहा है, इनकम बहुत अच्छी है, पर वो बताते हुए भी शर्माता है उस बात को कि वो क्या करता है। एंड हियर एज वेल यू वॉन्ट ए जॉब, यू वॉन्ट टू डू अ वर्क और बिजनेस जो आप दूसरों को बता सको कि अरे सुनो मैं ये काम करता हूँ। सो एक अपने करियर में, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपने पाथ को लेकर आप काफ़ी एक कॉन्फिडेंट पर्सन यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो। प्लस आप बताना चाहते हो दैट आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, आई एम डूइंग दैट थिंग, एंड you don't want to keep secret about your career from other people. You want to share what you're doing, and you want to do a thing, want to earn money जिससे आपको प्राउड महसूस होता है कि हाँ आप ये काम करते हो। एंड बिकॉज आई सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सो इट शोज दैट जब आपने अपना करियर चूज कर लिया तो ऑफकोर्स हमारा करियर हमें ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ बेटर पर्सन और एट टाइम्स इनटू वर्स्ट पर्सन, दैट डिपेंड्स। हमारा करियर हमारी पर्सनालिटी को शेप अप करता है। तो यहाँ पर जब आप अपने करियर में चल पड़ोगे, it is going to lead you to a very A personality type person. I'm not saying that you are becoming a good person or a bad person, it's you who are going to judge, but what I can see is that you are becoming this A personality person who is on time, who is punctual, who is not lazy, who always submits their work early before deadline, and वेरी पंचुअल अगेन, कट थ्रोट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, उस टाइप के यहाँ पर आप पर्सन, ए पर्सनालिटी काइंड ऑफ आप बनते जा रहे हो। यहाँ पर अर्ली ऑन आप ऐसे नहीं हो सकते, अभी प्रेजेंट में शायद आप ऐसे पर्सन नहीं हो, बट एज यू ग्रो मैच्योर इन योर करियर आप एक ए पर्सनालिटी टाइप यहाँ पर बनते जा रहे हो, जो अपने इमोशन से ज़्यादा डील नहीं करते हैं, अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स से ज़्यादा डील करते हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल रहा है, और एंड येस यू आर बिकमिंग मोर एक्सपीरियंस्ड हियर, एंड थ्रू दैट एक्सपीरियंस यू ऑल्सो लर्न समथिंग एंड यू आर यूजिंग दैट इन योर करियर, एंड यू आर ऑल्सो सीइंग ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मुश्किलें तो अब भी है, आगे भी ज़रूर आएंगी, बिकॉज दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ रियल लाइफ। तो आगे चल के जब आपको मुश्किल आती है अपने करियर में, अपनी अथॉरिटीज़ से, तो आप उस चीज़ को मजाक में ख़त्म कर देते हो, आप मजाक उड़ा देते हो उस चीज़ का, सिचुएशन का, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हो, तो उस चीज़ के बारे में परेशान होकर भी क्या करोगे, राइट? So you make fun of that thing, you make fun of that situation, you don't make fun of other people, but you make just fun of the situation you get stuck in, and you also come out of it because it's the sword is the energy of cutting and piercing। तो यहाँ आप उस सिचुएशन, उस ऑब्स्टिकल को कट और पियर्स करके आगे निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और अगेन आप अपने इमोशन से ज़्यादा डील नहीं कर रहे हो, आप अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल से डील कर रहे हो। और कई बार मन कहता है कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, तो वो भी एक इमोशन है, लेजीनेस का इमोशन है। दिमाग कहता है कि अभी उठेंगे जल्दी तो काम जो है जल्दी उस पर लग पाएंगे और जल्दी वो ख़त्म हो पाएगा, जल्दी हम उस चीज़ को सबमिट कर पाएंगे, दिमाग ये कह रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन फ्यूचर यू आर गोना लिसन टू योर ब्रेन, यू आर गोना लिसन टू योर माइंड, नॉट इमोशंस। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक बड़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी भी है, तो इन फ्यूचर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, इसके भी हाई चांसेस हैं कि you start doing your business and you spread your business. But early on in life, I would say before the age of 32 or 33, you will be doing jobs, and after that it can happen that you start your business, या फिर 32 या 33 से पहले आपने बिजनेस, साइड बिजनेस करना शुरू कर दिया, and that side business became your main business, became your main work। तो आपने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी और उस बिजनेस पर फोकस करना शुरू करा। That can also be the case here, because I really feel that you can have Mars
in the 7th house or in the ascendant, in the main birth horoscope or in the Chandra Lagna or from the Arudha. And Mars in the 7th house or ascendant causes a person to be severely into being independent. Mars in the 7th or ascendant will, if you have this, तो you will see कि आपको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होगा, आपको ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं होगा. एंड हियर एज वेल बिकॉज आई सी सन कार्ड, तो ये सन आप भी बन सकते हो. सन इज द नेचुरल आत्मा कारक एज वेल, नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर एज वेल. So you yourself become the boss, you yourself become the authority that can even happen. But again ये चीज़ है कि मैं आपको बिजनेस में अपनी 20s में आते हुए नहीं देख रही हूँ. You will start this business when you are in your 30s. I know it's a general reading, but I am getting this strong message that you are going to start your business in your 30s, not in your 20s. In your 20s ऐसा हो सकता है you go for jobs और वहाँ पर आपके bosses जो हैं आपसे कहें कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, और वो आपको ऑर्डर लेना ही ना पसंद आए. एंड 20s में नेचुरली एक पर्सन अपने आप को जान रहा होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एक पर्सन अपने आप को जान रहा होता है. एक सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम होता है 20s. 30s में आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड महसूस करने लग जाते हो और रिस्क थोड़ा कम लेना शुरू कर देते हो. ऐसा भी होता है एट टाइम्स. और न्यू चीज़ें जो है इतनी शायद नहीं सीख पाते हम 30s में, क्योंकि हम थोड़ा हमारा माइंड सेट रिजिड हो जाता है. इन योर केस व्हाट आई एम सीइंग इज कि 20s में जो चीज़ आपने लर्न कर ली, जो आपने एक्सपीरियंस ले लिए, तो वो आपको काफ़ी कुछ सिखा के जा रहे हो वो एक्सपीरियंस. और उसके बाद यू आर रेडी टू इवन टेक रिस्क. People can say कि आप बड़े एनर्जेटिक हो, इवन यू आर इन योर 30s और 40s, स्टिल यू आर वेरी एनर्जेटिक. माइंड आपका बड़ा तेज़ी से काम करता है इवन दो यू आर इन योर 30s और 40s. एंड इवन 50s में या 60s में आप काफ़ी एक्टिव यहाँ पर रहने वाले हो अपने बिजनेस में, अपने वर्क में. आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर भी हो यहाँ पर. एंड द थिंग इज वट एवर इंफॉर्मेशन यू गेन्ड इन योर 20s, जो आपकी सेल्फ रियलाइजेशंस हुई, उसके बेसिस पर आप अपना बिजनेस यहाँ पर खड़ा कर सकते हो. इसके हाई चांसेस हैं. बट फर्स्ट आप जो हो अपनी 20s में एक्सपीरियंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो. और आई ऑल्सो फील ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ अबंडेंस हियर इन द फ्यूचर फॉर यू, बट प्रेजेंट में जो है अगर आप अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करते हो दैट विल बी ग्रेट. मीनिंग हायर एजुकेशन लेना, स्पेशलाइजेशन करना किसी चीज़ में, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. बिकॉज आपके स्किल्स आपको इन फ्यूचर काम आएंगे, नॉट जस्ट इन जॉब बट इन बिजनेस एज वेल. और वक्त की कदर करो. वक्त जो है वो बहुत जल्दी बीतता है. एंड हियर एज वेल वी हैव दिस टाइम डिवाइस, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं. सैंड जो है ये नीचे गिरती रहती है जो कि वक्त को रिप्रेजेंट करती है अगेन. तो यहाँ पर वक्त भाग रहा है. यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स ज़रूर इम्प्रूव करनी चाहिए, टाइम को मैनेज करना चाहिए. वक्त जो है बहुत तेज़ी से बीत रहा है, तो टेक केयर कि आप अपना वक्त कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, कहाँ पर आप अपना समय लगा रहे हो. बिकॉज अगेन टाइम इज़ मनी, रिमेंबर दिस थिंग. लेट मी पुल ए मास्टर कार्ड फॉर यू, पाइल नंबर 1. Master card for pile number 1. Okay, I see 2 of cups in reverse. Again, it's not really about emotions, it's about logic, it's about your analytical skill. And आप वही ए पर्सनालिटी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो. एंड 2 of cups वैसे एक यू कैन से 2 लोग साथ आए, या तो उन्होंने लाइफ पार्टनरशिप करी यानी मैरिज करी, या फिर वो पार्टनर्स बने बिजनेस में. बट बिकॉज इट्स इन रिवर्स नाउ, तो आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस करना ज़्यादा प्रेफर करोगे, राइट? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप इंडिपेंडेंटली हर चीज़ करना चाहते हो. अगेन वो जो मार्सेशन एनर्जी है वो है यहाँ पर कहीं ना कहीं. आपका आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट और योर मून, इट्स गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्स. और असेंडेंट या 7th हाउस में मार्स है. एंड मार्स बीइंग दैट
सिवियरली इंडिपेंडेंट एनर्जी, क्योंकि मार्स एरीज साइन को रूल करता है एंड एरीज फर्स्ट साइन है एंड एरीज इज द साइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म. तो कहीं ना कहीं आपको हॉट हेडेड भी बनाता है, मे बी आपको गुस्सा जल्दी आता है, एंगर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है. और अगेन यू कैन नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द अथॉरिटीज, फ्रॉम द किंग, फ्रॉम द सन, द अथॉरिटी. और इस वजह से आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो इंडिपेंडेंटली, वो भी किसी एक बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हो. कुछ लोग होते हैं जो अपने स्पाउस के साथ बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस पार्टनर बनते हैं दो लोग जो कि लाइफ पार्टनर्स हैं. सो दैट ऑल्सो हैपन, बट इन योर केस आप इंडिविजुअली चीज़ें करना प्रेफर करते हो और हर चीज़ खुद करना ये आप चाहते हो. यू मे इवन डोंट वांट टू कीप एन असिस्टेंट टू हेल्प यू आउट इवन व्हेन यू नीड, like even when you desperately need that help, then also you may not hire an assistant because आप हर चीज़ खुद करना चाहते हो. एंड ऑफकोर्स यहाँ पर आप अपना वक्त, अपनी एनर्जी लगाते हुए नजर आ रहे हो. आप लेजी यहाँ पर इतने नहीं नजर आ रहे. अगेन वो आपके अंदर फायर है, दैट एनर्जी इज देयर टू डू समथिंग इन लाइफ. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. लेट मी जस्ट पुल some cards from this astrology deck. All right, so I see 12th house and it's the moksha house. It's the house of foreign places, asylum, losses, exile, imprisonment, solitude, self-sacrifice, and it's really not the house of freedom जैसे यहाँ पर लिखा हुआ. It's really not the house of freedom. It's the okay, freedom इस वे में कि इस बॉडी से फ्रीडम, इस पंच तत्वा की बॉडी से फ्रीडम, कि जो हमारी सोल है वो तो अजर अमर है, पर इस बॉडी में है तो सोल थोड़ी इम्प्रिजेंट है इस बॉडी में. पर क्योंकि 12th हाउस एग्जिट है, रिटायरमेंट को भी शो करता है 12th हाउस, बट इट रिप्रेजेंट्स आवर पास्ट लाइफ एज वेल. इट्स द एग्जिट. फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारा ये वाला जन्म, ये वाला लाइफ टाइम. 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी पास्ट लाइफ. पास्ट लाइफ से इस लाइफ तक आने के लिए वी हैव टू गो थ्रू डेथ, वी हैव टू गो थ्रू दैट यू कैन से जो सोल ने बॉडी छोड़ी उससे हमें, उस सिचुएशन से हमें निकलना पड़ता है, तो उस सोल को फ्रीडम मिलती है. तो यस, kind of 12th house shows freedom. It's exit, but at the same time it represents asylum, jails, and it's the house. 12th house is the house of losses, expenditure, व्यय करना. So यहाँ पर जो है, because आप एक अपना बिजनेस जो है इंडिविजुअली खड़ा करोगे तो मनी तो यहाँ पर जा रहा है आपका. ऑफ कोर्स मनी आप इन्वेस्ट यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो, एंड लॉसेस भी यहाँ पर होंगे, वो भी चीज यहाँ नजर आ रही है बिजनेस में. बट बिकॉज 12th हाउस ऑल्सो इज द हाउस विच रिप्रेजेंट्स एंडिंग्स एंड अ रीस्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स. तो कहीं ना कहीं जब वो लॉसेस आपको होते हैं उसके बाद आप जो हो राइज करते हो यहाँ पर नजर आ रहा है. अगेन द नक्षत्रास लाइक पुनर्वासु कम्स इनटू दिस, नॉट इन द 12th sign, or it can occur in your 12th house though. You can be in I would say you can be a Cancer ascendant person. तो Gemini sign 12th house में होता है, Gemini में भी पुनर्वास होता है. You can be a Leo ascendant as well. तो जो 12th house है उसमें साइन ऑफ कैंसर होगा, उसमें भी पुनर्वासु नक्षत्र होता है. एंड पुनर्वासु इज कि एक पुनर्वासु पर्सन बैंकरप्ट भी हो जाता है, स्पेसिफिकली कैंसर वाला, नॉट जेमिनी, कैंसर पुनर्वासु. इफ यू हैव एनी ग्रह देयर इन दैट दशा, और स्पेसिफिकली मून और आत्माकार का इन इट्स दशा, इन इट्स टाइम प्लैनेटरी टाइम पीरियड, यू कैन गो थ्रू बैंकरप्सी. बट रिमेंबर व्हेन यू फाइल फॉर बैंकरप्सी यू आर गोना सी उसके बाद आपका एक राइज का टाइम आने लग जाएगा. Just like it's true, very much true with Punarvasu in Cancer, that a person goes through bankruptcy multiple times, and whenever they file for bankruptcy, they rise in their life, और पहले से ज़्यादा राइज करते हैं. तो यहाँ पर लॉसेस भी आपको होते मुझे नज़र आ रहे हैं बिजनेस में आफ्टर 30s,
बट उन लॉसेस से जब आपको वो लॉसेस हो उसके बाद आपका एक राइज का टाइम भी नजर आ रहा है, और आप ज्यादा राइज करोगे अपनी लाइफ में जब आपको वो लॉस मिल जाएगा. दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू हेयर. लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1. Okay, Grahas, Mercury, communicating, Buddha, intelligence, it represents wit, humor, information. So आप जो हो, Mercury represents our third house of social media as well. Of course, Mercury is the कारक of communication, skills of hands, writing. It represents our analytical logical skill as well. और मैंने कार्ड देखो Queen of Swords के साथ रखा है, ये Queen of Swords है, इसके साथ मैंने Mercury कार्ड रखा है. And Queen of Swords also is about communication because it's the energy of swords, it's the energy of air. हवा में बातें करना कहावत भी है. साउंड वेव्स ऑल्सो ट्रैवल इन एयर. मर्करी इज ऑल्सो अबाउट दैट साउंड वेव्स, इट्स अबाउट दैट कम्युनिकेशन. And it's also about social media like Instagram, YouTube, spreading your business through social media. Mercury is communication, so your communication is very powerful. It's cutthroat, straight to the point. And through your communication, you're gonna gain something in your life. Through your communication or through your analytical logical skill or writing skill, you're gonna gain something. But more so यहाँ communication की ज़्यादा बात है क्योंकि swords की energy है, यहाँ पर भी swords की energy है. तो through your communication, you are gonna gain something in your life for sure. So अपना अगर कोई चीज़ strengthen करनी है तो communication को strengthen करो. And let me just pull one more card here for you from this astrology deck. I see Aries. Mars. So as I've told you itself in the beginning, मैंने बात कही थी कि there is influence of Mars, and here we have Aries, which is itself ruled by Mars, and Aries is the sign of, as I've told you again, is a sign of individualism. And Aries person, for an Aries person, it's very difficult to be under someone, to work for someone else. Aries is about, it's like the first child. जो पहला बच्चा होता है वो हमेशा कहता है मुझे पहले दो हर चीज़, मैं पहले आया था, मुझे पहले सर्व करो. और एक सिंगल चाइल्ड भी ये कहेगा कि मैं आपका इकलौता बच्चा हूँ, मुझे हर चीज़ पहले मिलनी चाहिए, आप उसको कैसे दे सकते हो चीज़. तो possessiveness also comes in play with Aries. So यहाँ पर you are going to be very possessive about your about your land, real estate, properties, because again Mars is the bhumi karaka. So land, real estate भी आप यहाँ पर gain करते हुए नजर आ रहे हो. At the same time, you are going to be very possessive of your properties, of your things you have. You don't want to share it. You don't want to share it. It can even happen that you may not really share your things with your spouse as well. That can even happen. And because Two of Cups भी यहाँ पर है, and Two of Cups is the card of two people who love each other and want to do something or want to make future together. And now because it's in reverse, so you may not even discuss your business plan with your spouse, or you may not even divide your wealth with the spouse. That can be the case here. And again, you have the courage, you have this fiery energy inside you, you are a natural born leader. That's there, that leadership also comes, because Aries is the sign where sun feels exalted. So you are becoming this authority in your life, and you're gonna feel that I am the king, so people should listen to me. So that ego will also come here. So take care of your ego. Take care of your ego, because it's a vice, it's not a good thing. Take care of your ego, because ईगो बहुत जल्दी, ईगो सबसे फ्रैजाइल चीज़ होती है, वो बहुत जल्दी टूट सकती है. सो ट्राई टू नॉट हैव दैट ईगो, ट्राई टू बी मोर चैरिटेबल, बिकॉज अगेन 12th house shows charities. It represents giving something and not expecting something in return. So it's about charity, because charity भी वही है जब आप किसी को कोई चीज़ देते हो without expecting someone to return you something. राइट. एंड बिजनेस होता है जहां पर आपने किसी को कोई चीज दी और कुछ एक्सपेक्ट करा कि वो आपको कुछ वापस दे. दैट्स बिजनेस. सो चैरिटी में बिजनेस नहीं करना कि मैं इसको चैरिटी दे रहा हूँ, अब मेरे पास बहुत मनी आएगा. दैट्स बिजनेस. देन डोंट डू दैट. तो आपकी इंटेंशन भी चैरिटी वाली ही होनी चाहिए कि मैंने इस पर्सन को दिया तो दिया बस.
मैंने इस एनजीओ को दिया तो दिया, आई डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। तो एक वो इंटेंशन भी आपकी होनी चाहिए, चैरिटेबल इंटेंशन होनी चाहिए, और चैरिटीज आपको करनी चाहिए। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि डू बिग चैरिटीज, बट ऑलवेज गिव समथिंग, राइट, ऑलवेज गिव समथिंग। यहाँ पर अगेन सेल्फ सेंटर्ड भी लिखा हुआ है एरीज कार्ड में। ऑफ कोर्स इट्स द फर्स्ट साइन, एंड एरीज जो है फर्स्ट हाउस नेचुरली रूल करता है इन कालपुरुषा, एंड naturally the first house represents fame, so you can become self obsessed as well, self centered, कि मुझे फ़ायदा हो। तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, इन इमोशंस को। that's very important, but yes, you're a natural leader, you're a natural ruler, you don't want to take orders from other people। तो ये चीज़ है यहाँ पर। let me just pull some more cards. I should say guidance card, Oracle गाइडेंस यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए। All right, I see light here. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. So as I've told you, ये जो sun card है या जो sun होता है, it's the ultimate source of energy, right? तो जहाँ सन है वहाँ पर क्लैरिटी होगी, वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता है। एंड हम नॉलेज को भी जो है एक लाइट कहते हैं, एक होप कहते हैं, लाइट ऑफ नॉलेज कहते हैं। और मैंने यही चीज़ शुरू में भी कही है कि अगर आप you are in your 20s or you are starting your 20s, or even if you are in your late 20s, you haven't really touched your 30s, और अगर आपने अपने 30s में भी आ गए हो, स्टिल अगर आपके पास हायर एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, टेक दैट एक्सपीरियंस, टेक द एजुकेशन, गो फॉर हायर एजुकेशन। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप यहाँ पर एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हुए नजर आ रहे हो। बट इफ़ यू फील कि अगर मेरे पास MBA की डिग्री होती, कि मेरे पास अगर किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होती तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, या फिर अगर मेरे पास इस कंपनी का एक्सपीरियंस होता तो काश मैं एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस लेना, लर्न करना इररिस्पेक्टिव ऑफ एज बहुत अच्छा रहेगा। सो अपनी एजुकेशन पर, अपने एक्सपीरियंस पर ज़रूर ध्यान दो, ये चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। लाइट ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज गोना गाइड यू, इज ऑलवेज गोना ब्रिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर प्रेजेंट के लिए। आई वुड से प्रेजेंट में जो है ये चीज़ अगर आप चाहते हो, जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी इन कार्ड से, अगर आप ये चाहते हो ऐसा आपका फ्यूचर हो, तो ऑफकोर्स यहाँ पर नॉलेज लेना, लर्न करना, एक्सपीरियंस लेना ये ज़रूरी है। एंड बिकॉज ये टेरो हमारी करंट एनर्जीज़ पर बेस्ड होता है, तो आपकी ये करंट एनर्जीज़ भी है कि आप ये सब चीज़ें चाहते होगे अपनी लाइफ में, और करंट एनर्जी आपकी ऐसी है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है प्रेजेंट के लिए, करंट के लिए, अभी के लिए। देन आई सी लॉस्ट एंड फाउंड। What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. So I feel that this reading it can be eye-opener for some of you, pile number 1. क्योंकि like Hanuman, right? The macho deity, he forgot his powers, कि मैं उड़ सकता हूँ, मुझ में इतनी पावर है, वो भूल गए थे। और फिर उनको किसी ने रिमाइंड करा कि हे हनुमान, यू आर सो पावरफुल, यू कैन फ्लाई, यू हैव सो मच स्ट्रेंथ, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है आपके लिए एक आई ओपनर हो सकती है, कि रिमाइंड करा सकती है कि आपके पास कितनी सारी पावर्स है और आप कितना सक्सेस अपनी लाइफ में पा सकते हो। और कहीं ना कहीं ये I would say that you can even have the nakshatras dominating like Swati, because Swati is the nakshatra of wind again, and it's the nakshatra of Hanuman and even Superman. In Western societies or Western people, उनको कई बार हनुमान deity के बारे में पता ही नहीं होता है। And I do tell when I do reading, so when a person has Swati nakshatra, I do ask them, are you a devotee of Hanuman? And if you are not, then do visit Hanuman temple every Tuesday. And I do tell them you can be interested into movies where superheroes can fly like Superman. And most of them say that yes, we are too obsessed with superheroes who can fly.
because again it's a nakshatra of wind, it's a nakshatra of Hanuman. And with Swati nakshatra, person forgets, they forget कि उनका गोल क्या है, उनको क्या करना चाहिए लाइफ में, वो क्या चाहते हैं, यही चीज़ वो भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड. तो कहीं ना कहीं दिस नक्षत्र कैन ऑल्सो बी इन योर चार्ट, और वो कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पर एक्टिवेटेड हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स भूल जाते हो बार बार. यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, और इस वजह से जो गोल की तरफ आप जा रहे हो तो वही रास्ता ही भटक जाते हो. तो यहाँ पर आपको अपने कमरे में जो है ऐसी जगह पर एक चार्ट या फिर एक बोर्ड लगाना चाहिए जहाँ पर आप अपनी चीज़ें लिखो कि आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ताकि जब आप उसको देखो तो आपको याद रहे, आपको बार बार रिमाइंड होता जाए कि दिस इज़ माई गोल, तो आप उस गोल से भटको ना. सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड रेमेडीज फॉर यू पाइल नंबर 1, इवन इफ़ यू हैव स्वाति नक्षत्र और नॉट, बट कहीं ना कहीं आप लिखो ज़रूर जहाँ पर आपकी रोज़ नज़र जाए कि मैं चाहता क्या हूँ अपनी लाइफ में. कहीं वो आप भूल जाते हो चीज़ें बार बार. सो दैट्स देयर. यहाँ पर कुछ और गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए. ऑल राइट, I see shine from within. It says, looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. So, of course, beauty ka card is, some of you can be interested into participating in beauty pageants and becoming a beauty pageant, and kahin na kahin मेकअप एंड यही जो क्लोथिंग डिज़ाइनिंग, इससे भी रिलेटेड आप में से कुछ लोग जो हो इंटरेस्टेड होंगे. एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी आप अपना बिजनेस यहाँ पर कर सकते हो, बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट, हैविंग योर ओन मेकअप लाइन और क्लोथिंग लाइन, ये चीज़ भी है. प्लस इसका अगर हम डीपर मीनिंग देखें, शाइन फ्रॉम विद इन, इट्स अबाउट के जो आपके अंदर स्किल्स है, जो ट्रू ब्यूटी, इट्स जस्ट नॉट आउटसाइड बट इट्स इनसाइड एज वेल. जो आपके अंदर स्किल्स हैं, उन स्किल्स से आप यहाँ पर शाइन कर सकते हो. एंड अगेन जहाँ पर शुरू में जैसा यहाँ पर मैजिशियन कार्ड आया था, ये वाला कार्ड मैजिशियन कार्ड, एंड आई टोल्ड यू दैट यू हैव मेनी स्किल्स, यू आर हाईली स्किल्ड पर्सन, यू जस्ट नीड टू पॉलिश देम अ बिट, दैट्स इट. एंड यहाँ पर भी जो है स्किल्स की बात हो रही है, जो चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी है उन चीज़ों की बात हो रही है, उनको थोड़ा और पॉलिश करने की, उनको थोड़ा और शाइनी अट्रैक्टिव बनाने का ये टाइम है. और जिन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हो, उस चीज़ को पहले बात तो एक्सेप्ट करो कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, और उसके बाद अगर आप उस चीज़ को अच्छा कर सकते हो तो उस चीज़ को अच्छा करो, पर जिस चीज़ में आप ऑलरेडी अच्छे हो तो उसको और ज़्यादा पॉलिश करो, इस पर फोकस करो. ये आपके लिए गाइडेंस है. And that will help you in revealing your and that is going to help you in revealing your true beauty, or I should say it is going to help you to reveal yourself in front of the world and show that how much powerful you are, how good of a leader you are, how good of a business person you are. And because यहाँ पर वर्ल्ड की बात हो रही है, तो मैंने सोशल मीडिया की भी बात करी है मर्क्यूरी के कार्ड पे, that you can even spread your business through social media, and nowadays it's not a big thing as well. Instagram is a big social platform where people spread their businesses. It's not a new thing here. और यही चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत लोगों तक आपका बिजनेस जो है पहुँच रहा है, बहुत लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं. So social media is also very, very powerful. It's very powerful in this day and age, because this is the day and age of Rahu. Rahu is innovation, Rahu is Wi-Fi, Rahu is information technology, IT sector, right? So Rahu is exotic. People love exotic things. पहले के टाइम पर लोगों को एक विलेज से दूसरे विलेज में जाना ही नहीं पसंद होता था, उसी को गलत मानते थे, नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे. आज की डेट में बहुत चीज़ें बदली हुई है, बहुत सारे बदलाव है, मेंटालिटी में बदलाव है, इनोवेशन को यस कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है. तो यहाँ पर भी जो है, अगेन यू कैन स्प्रेड योर बिजनेस, यू कैन टेल अदर पीपल अबाउट योर स्किल्स थ्रू सोशल मीडिया. इट्स गोना हेल्प यू आउट. All right, so this is something which I'm getting for you, pile number 1, and yes, that was it. And do let me know in the comment section how it resonates with you,
how this reading resonates with you. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2, so this is your reading. You chose the cream brown stone, the Jupiterian stone here, and let's just get started with the reading. पाइल नंबर 2 जो हैं उनको कौन सा करियर सबसे ज़्यादा सूट करेगा, कौन सा पाथ जो है सबसे ज़्यादा सूट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट, अकॉर्डिंग टू देयर करंट एनर्जीज, उनके लिए कौन सा पाथ, कौन सा करियर अच्छा रहेगा, बेस्ट सूट करेगा. पाइल नंबर 2. All right, I see 8 of wands here, and then I see the Queen of Wands, then I see the Emperor in reverse, and then I see Knight of Swords also in reverse. All right, okay, beautiful cards. सो जो आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट में बिखराव में, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. प्लान ए तो है ही है, बट साथ में बी सी डी ई बहुत सारे और प्लान्स भी हैं. अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो प्लान सी यूज़ कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो प्लान डी यूज़ कर लेंगे. वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. तो जो एनर्जी एकाग्रता यानी एक जगह पर फोकस होनी चाहिए, वो बिखराव में है, तो आप अपना 100% किसी भी चीज़ में दे नहीं पा रहे हो. और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ये चीज़ लेके आनी चाहिए, या तो ये या फिर डेथ. जैसे एक पर्सन जो है रनिंग कर रहा है, राइट, और वो पर्सन जो है उसने 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, चाहे कुछ हो जाए. तो उस पर्सन के मन में क्या आता है, या तो मैं उस फिनिश लाइन तक पहुंचूंगा, या फिर मैं फिनिश लाइन से पहले पहुंचने से पहले ये शरीर ही छोड़ दूंगा. या तो आर या फिर पार. आर या पार वाली जो बात होती है वो एथलीट्स या फिर रनर्स करते हैं, क्योंकि तबीयत भी उस टाइम खराब हो रही होती है. मे बी दे आर फीलिंग अ बिट नॉशियस एंड या तो वॉमिटिंग या फिर चलते रहेंगे ऐसे ही, पर रुकेंगे नहीं, ये चीज़ है. सो यहाँ पर आपको आर या पार करना चाहिए, तो प्लान ए या फिर नो प्लान. सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन वन थिंग. You have to concentrate on one thing, and yes, I would also suggest, I would, give you guidance that do running, do distance running, because आप अपनी बॉडी को ही नहीं, अपने माइंड को भी ट्रेन करोगे अपना 100% देने के लिए एक चीज़ पर. जब तक मैंने उस चीज़ पर, मैं जब तक उस पोजीशन पर नहीं पहुंचा तो मैं रुकूंगा नहीं. मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, मैं चलता रहूँगा उस पर, उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए. तो एक डिटर्मिनेशन जो है वो आएगी अंदर. सो रनिंग जस्ट डज नॉट हेल्प योर बॉडी, इट्स जस्ट नॉट योर कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज, but it's the exercise which helps your brain as well to focus more on one thing. क्योंकि हाँ, of course you are a multitasker, you can be a great multitasker, but you really need to focus your energy somewhere. क्योंकि again ये जो 8 of wands है, wands is the energy of fire, और इस डेक में wands का कार्ड है, तो again हम एक फायर साइन भी देखते हैं यहाँ पर. तो वो अंदर एक पैशनेट एनर्जी ज़रूर है आपके, वो एक फायर ज़रूर है आपके, वो जो दम है वो ज़रूर है यहाँ पर आपके पास वो चीज़ अचीव करने का. बट क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या बहुत सारी चीज़ों को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारी एनर्जी डिवाइडेड है, एक जगह पर नहीं है, तो इसको एक जगह पर करने की ज़रूरत है. एंड बिकॉज फायर साइंस हमारे एरीज, लियो, सेजिटेरियस होते हैं. फर्स्ट फायर साइन इज एरीज, एंड एरीज इज अबाउट इंडिविजुअलिज्म. Aries is about I am the king, serve me first, because I'm the first zodiac sign, for God's sake, so serve me first. And Aries is also about aggression, it's about anger as well.
So that anger is also inside you, and pith energy is there for sure. Pith energy, your body type can be pith body type. And Queen of Wands है again, Wands की energy, fire energy, it's again Queen. So it's about being independent. It's about being independent. And कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स जो है इसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 2 यू कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1, बिकॉज पाइल नंबर 1 में भी वो इंडिविजुअलिज्म था और वो बिजनेस लाइक एनर्जी थी. एंड पाइल नंबर 2 आप में भी वो बिजनेस लाइक एनर्जी, आप जो हो किसी और पर या किसी और के अंडर काम नहीं करना पसंद करते. और यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है, आपकी अपनी बॉसेस से नहीं बनती है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे बॉसेस, उनको मेरा बॉस नहीं होना चाहिए, मुझे उनका बॉस होना चाहिए, क्योंकि मुझ में ज़्यादा स्किल्स है, उनको तो कुछ आता ही नहीं है. ये एनर्जी, ये थॉट आप में होगा. कहीं ना कहीं आप वो बॉस बनना चाहते हो, आप वो मैनेजर बनना चाहते हो, आप वो एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो, आप वो बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो. आप दूसरे लोगों के अंडर काम नहीं करना चाहते. यू डू नॉट लाइक टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अदर पीपल. But you really need to take care of your leadership power. You have that leadership energy, you have it. And because the emperor is in reverse, so it shows कि ये जो leadership power है ये भी थोड़ी directionless है, या ये भी जो है totally focused नहीं है. You need to take responsibilities of other people work as well. If you become a team leader, let's say you became a project head, right? And now अगर वो प्रोजेक्ट में कुछ कमी कमजोरी है तो आप वो दूसरे पर्सन पर ब्लेम नहीं कर सकते. बीइंग अ लीडर यू टेक इट ऑन योर सेल्फ, इवन इफ यू हैवंट डन दैट वर्क. आपका वो काम नहीं था या आपके ऊपर वो काम नहीं था, वो किसी और का था, पर यू आर द लीडर, सो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टीम. एंड डिप्लोमेसी भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है. जो लोग बहुत हाइट्स तक पहुँचते हैं, बिकॉज ये कलयुग है, और जो लोग बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुँचते हैं वो कोई बहुत अच्छे काम करके नहीं पहुँचते हैं. सभी लोगों का भला करके नहीं पहुँचते. येस, देयर विल बी पीपल हु विल डू गुड डीड्स एंड देन विल राइज टू द टॉप, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्सन जब किंग बनता है या अथॉरिटी में आता है, पावर में आता है, तो कई गलत काम करके भी जो है पावर में आता है. अच्छे काम भी करे होंगे ज़रूर, पर कुछ गलत काम भी करे होंगे. दैट्स वेरी ट्रू. दिस इज़ रियल लाइफ, दिस इज़ प्रैक्टिकल लाइफ. यहाँ पर ये चीज़ें होती है. तभी तो हमारे इंडिया में भी, भारत में भी जो पॉलिटिक्स है उसमें आप देखोगे कि कितने जो लीडर्स रहे या कितने जो लीडर के पास लोग हैं वो जेल्स में रहे हैं, और उन पे कुछ पे तो अभी भी केस चल रहे हैं. वो स्टिल पावर में होंगे वो लोग, पर उन्होंने कुछ ऐसे काम ज़रूर करे हैं जो अच्छे नहीं थे, और कहीं ना कहीं उन पे अभी भी वो केस चल रहा है, कुछ ना कुछ ये चीज़ें हैं. दिस इज़ कलयुग, दिस इज़ अ युग ऑफ राहु. सो राहु इज़ अ चीटर, राहु इज़ अ मलेफिक, राहु इज़ अ थीफ एज वेल, राइट. एंड यहाँ पर भी जो है वो डिप्लोमेसी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी. कहीं ना कहीं यू मे नॉट रियली लाइक इट इंटरनली, but we are all surviving. We are all here on this भूमंडला in a prison. क्योंकि prison कौन सा है हमारी बॉडी. ये पंच तत्वा की बॉडी है, ये एक तरह से सोल के लिए prison है, क्योंकि इस शरीर को जो है मेंटेन हमें करना पड़ता है. इस शरीर को खाना देना पड़ता है. खाना देने के लिए we start to learn from a young age, and then we get a job or something, and then we have our own family, but at the same time we have to take care of our health. इस बॉडी को जो है हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. इस बॉडी को जो है बहुत से काम करने पड़ते हैं. सोल तो कितनी फ्री है, बट सोल अगर बॉडी में है तो उसकी फ्रीडम छिन जाती है, क्योंकि इस बॉडी में पेट लगा हुआ है, तो इसको खाना देना पड़ेगा, और वो खाना किधर से आएगा? व्हेन यू अर्न. और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से. तो अगेन यू विल रिक्वायर टू बी डिप्लोमेटिक हेयर. you can even do some corrupt things in your life. That can happen here to rise to the top. कितने लोगों को धक्का देकर आप आगे निकलोगे यहाँ पर.
And I'm not saying that this is right or wrong. Internally, of course, my conscious will say that this is wrong and this is right. But it's your life. I am no one to judge. And Knight of Swords in reverse shows that you're becoming this person who thinks before saying anything, who thinks before doing anything in future. Because ये कार्ड सबसे लास्ट में आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स कि आपने कहाँ से शुरू करें, आप क्या काम कर रहे हो और आप क्या बन रहे हो. तो यहाँ पर आप इन फ्यूचर एक ऐसे पर्सन बनते जा रहे हो जो बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेंगे. ऐसे ही नहीं लेंगे कोई डिसीजन. You will sleep with the idea and next day you're going to tell your decision. You're going to make a decision. And वो जो मार्सेशन एनर्जी है वो यहाँ पर मेच्योर एनर्जी में बनती हुई नज़र आ रही है, कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है. मार्सेशन एनर्जी इज़ द सोल्जर एनर्जी. द सोल्जर विल डाई फॉर द कॉज बट विल नेवर नेगोशिएट. एंड सोल्जर किंग से छोटा होता है, उसकी पोजीशन किंग से छोटी होती है, कम होती है. सन जो है, और आई शुड से सन इज़ द कारक ऑफ किंग अथॉरिटी, राइट. तो जो किंग है, सन है, किंग है, वो ऑर्डर करता है सोल्जर को कि तुम्हें ये काम करना है, और सोल्जर उस ऑर्डर को मानता है, राइट. तो अर्ली इन लाइफ इट कैन हैपन कि यू वर्क अंडर समवन. लेटर इन लाइफ यू बिकम अ पर्सन हु give orders to someone else. You become the authority. You become this experienced person in future. But yes, यहाँ पर जो है, मैं अभी बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं देख रही हूँ. हो सकता है आप में से कुछ लोग बिजनेस करें, पाइल नंबर 2 हो सकता है ये चीज़ भी, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. बट मोर सो आई फील दैट यू विल become this executive in a company or a manager in a company, a position where people are working under you. कॉरपोरेट लैडर आप क्लाइम करते हुए नज़र आ रहे हो. ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पर है. उस ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे जो है उससे कैसे डील करें, वो चीज़ आप यहाँ पर सीख रहे हो. आपकी खुद के जो बॉसेस हैं उनसे नहीं बनती. बॉसेस कैन बी वेरी टफ नट टू क्रैक फॉर यू, वेरी टफ नट टू क्रैक. दे डोंट गेट इम्प्रेस्ड अर्ली इन लाइफ फ्रॉम यू. And later in life, you become the authority, you become that boss, you become that manager, you become the authority. And you don't really become an authority जो understand ही नहीं करते लोगों को. You become आप एक ऐसे manager बनते हो जो आपके लोग अंडर काम करते हैं, आप उनको समझते हो, उनकी मदद करना चाहते हो. इस टाइप के आप मैनेजर बन रहे हो यहाँ पर. इस टाइप के आप फ्यूचर में पर्सन बन रहे हो अपने करियर में, जो सच में एक अच्छा बॉस है, जो बहुत आप एक हम्बल्ड पर्सन भी यहाँ पर काफ़ी बन रहे हो. यू आर अ वेरी हम्बल्ड पर्सन हियर इन फ्यूचर. येस, इट कैन हैपन दैट यू मे हैव टू डू सम बैड थिंग्स टू गेट टू दैट पोजिशन, बट कहीं ना कहीं जो वो होता है ना, एक बुराइयों का घड़ा है, एक अच्छाइयों का घड़ा है. तो जो बुराइयों का घड़ा है वो इतना भरा हुआ नहीं है, वो फिर भी उसमें जगह है. और जो अच्छाइयों का घड़ा है वो आप भरते जा रहे हो, वो चीज़ भी नज़र आ रही है. बट येस, यू कैन डू सर्टन थिंग्स जिससे आप अथॉरिटी में, और वो सर्टन थिंग्स जो हो वो थोड़ी करप्ट हो या नेगेटिव हो. दैट कैन हैपन हियर बिकॉज अगेन एम्परर कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सो इट शोज दैट. But you are still becoming a humbled leader here, or a humbled person here, humbled boss here, humbled manager here, who understand their employees. एंड जो आपने मुश्किलें सहन करी अपने बॉसेस से, अपने मैनेजर से, वही मुश्किल आप अपने अंडर जो काम करेंगे लोग, इन्फीरियर्स जो आपके होंगे और जो आपके अंडर काम करें, आप उनको वो मुश्किलें नहीं दोगे. बिकॉज यू वेंट थ्रू इट एंड यू नो हाउ पेनफुल इट गेट्स, सो यू डोंट डू दैट. यू ब्रिंग द चेंज एंड यू बिकम अ वेरी गुड लीडर. यहाँ पर लीडरशिप रोल आपको मिलेगा, दैट्स देयर. बट वॉट यू रियली नीड टू डू राइट नाउ, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर राइट नाउ, इज फोकस योर एनर्जी ऑन वन थिंग एंड वर्क ऑन योर लीडरशिप क्वालिटीज. बिकॉज एट टाइम्स हमें पता है कि ये काम शायद जो ये पर्सन चाहता है करना, ये मेरे टीम में ये होगा नहीं, बट अभी के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा. You already will know that this thing will work and this thing will not work out. You will try to make that person understand, but वो शायद person माने ना, और
उसके बाद यू हैव टू जैसे कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सो यू डू समथिंग लाइक दैट, राइट. सो वो चीज़ें हैं यहाँ पर. लेट मी पुल सम कार्ड्स फॉर यू फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक, और वेट, लेट मी पुल अ मास्टर कार्ड फर्स्ट. पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर, ओ माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स निकल आए यहाँ पर. तो सो यस, पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर मास्टर कार्ड. Okay, I see the Empress here. So Empress is about providing nourishment. It's about that no matter what, I am going to be there. I'm always going to provide you nourishment. I always going to provide you support. So somehow you are becoming this supportive figure. You are becoming this motherly energy here in future. And कहीं ना कहीं again, as I've told you, you're becoming a humbled leader here. तो वो चीज़ है यहाँ पर कि आप दूसरों की परवाह करोगे, उनको एक बेटर लाइफ देना चाहोगे, और कहीं ना कहीं आप अपने अंडर जो लोग काम करते हैं, यू विल ट्रीट देम एज योर चिल्ड्रन. You can have the nakshatras like Pushya dominating, and Pushya is the nakshatra ruled by Saturn, but the deity is Jupiter. Jupiter is Brihaspati. Jupiter represents preacher, teacher, advisor, counselor, and you become a great advisor, teacher to your people working under you, जो आपके अंडर काम करते हैं, जो आपसे छोटी पोस्ट पर काम करते हैं. आप उन लोगों के लिए, आप उन लोगों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करोगे. वो आपके स्टूडेंट्स होंगे, but you will treat them as your own children. And most of the time एक पुष्या पर्सन जो है, एक कोई भी अगर पुष्या पर्सन काम करता है, he will somehow or she will somehow end up in teaching other people, and he will make them their student, and they will treat their student as their children. And it can even happen a pushya person have many children, 4 or 5 children. It can even happen that way. Like if I have to give an example, a few days back I was on scrolling Instagram, and Angelina Jolie, if I'm pronouncing her name correctly, Angelina Jolie with her children, वो एक picture आई, and she had many children. Like she has also did adoptions, right? और of course जो biological children भी है, adopt भी करे हैं बच्चे. तो she has many kids. She definitely have many kids. And when I saw her chart, of course time नहीं पता लगा, but date तो पता है, birth date और place of birth तो पता है. तो from the Chandra Lagna itself we see, or even if when we do not even see Chandra Lagna, I saw कि I think her Venus और एक दो planets हैं जो पुष्या नक्षत्र में हैं. And it was no surprise that why does she has this obsession towards children. क्योंकि Rahu was also in the 5th house. Rahu is obsession. And 5th house is children. Plus Pushya Nakshatra, about children, many children. So that's there. And you're also becoming a person who can be this motherly energy, motherly figure, or a guru-like energy to many people. To many people. So वो चीज़ भी, और you yourself can have many children, many biological children, or you say that I want to adopt, that can even be the case. But because this is a career reading, कि कौन सा करियर, कौन सा पाथ आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, तो इट शोज़ कि आपको कहीं ना कहीं टीचिंग, कहीं ना कहीं बीइंग अ प्रोफेसर, ये चीज़ें भी आपको सूट करेगी, ये करियर्स भी आपको सूट कर सकते हैं. यू फर्स्ट वर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड देन उसके बाद आपके एफर्ट्स की वजह से या जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद यू बिकेम द प्रोफेसर, राइट? एंड देन हेड ऑफ अ कमिटी, हेड और member of some committee, and then head of the committee in a college. That can even happen. But yes, you can even become, pile number 2, you can even become a professor, a teacher, a guru, a guide, and you will have many people working under you who you treat like they are your children. So this is something which I'm getting. Let me just pull some cards from this astrology deck. All right. So I see Leo.
sun. So Leo itself rules the fifth house in Kalpurush, and fifth house represents children, and it represents, like here it is written, sun of course ruler hai, king hai, authority hai. So you are becoming the ruler, you are becoming the authority. You should definitely work on your leadership qualities. Here it says magnetic, loyal, tolerant, orthodox, warm-hearted, and it's a Pith Kapha type. Pith Kapha type, and here as well it is written fire energy. And शुरू में ही मैंने कहा there is lot of Pith energy, lot of fire energy inside you, lot of fire inside you, और मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा है. और जो सन होता है, आप सन को कभी इग्नोर नहीं कर सकते. अगर सन शाइन कर रहा है तो सारी जगह जो है हाफ ऑफ द अर्थ पर वो एक ब्राइटनेस है, चीज़ें क्लियर है. रात होती है तो अंधेरा हो जाता है, चीज़ें क्लियर कई बार नहीं दिख पाती है. बट सन ऑलवेज ब्रिंग्स क्लैरिटी. सो यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन अदर पर्सन्स एंड अदर पीपल्स लाइफ, एंड यू आर मैग्नेटिक. सन कैन नेवर बी इग्नोर्ड. अग्नि जो है कभी भी इग्नोर नहीं करी जा सकती. जैसे चाहे वो हवन यज्ञ की अग्नि हो या फिर वो बॉन फायर हो, सिंपली उस आग की तरफ, उस अग्नि की तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा. यू कैन नॉट इग्नोर दैट. एंड यू योर सेल्फ आर दिस सन इंडिविजुअल. You yourself can have sun in ascendant or sun and moon conjunction, and it shows that you definitely are this magnetic person. आपको लोग इग्नोर नहीं कर सकते. इंटेंशनली ज़रूर कर सकते हैं, बट अनइंटेंशनली कोई पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकता है यहाँ पर. And because it's the sign of Leo, so we have the nakshatras like Magha, Purva Falguni, Uttar Falguni. Specifically Uttar Falguni is about consulting, advising. So you become a great consultant and advisor, and some of you can even become a CA, chartered accountant, or a lawyer, or an astrologer even, because ये चीज़ें भी जो Uttar Falguni से related है. Magha, it's the nakshatra of a king. So again business comes here. It is about independent energy, तो वो चीज़ भी है. Purva Falguni is about rest and rejuvenation, doing a job. But you will also see people with Purva Falguni in businesses. That's also true. But individually Purva Falguni business नहीं दे सकता है. उसके लिए कुछ और योगास भी चाहिए. So that's there. But I do see that Leo sign can be quite dominant in your chart, or somehow many planets can aspect Leo sign, aspect the nakshatras like Magha, Purva Falguni, Uttar Falguni. So I see that. And you are very ambitious as well. That's also there. यहाँ पर कुछ और information. Okay, house. 8th house, basement. Obstacles, legacy. It represents mysteries, scandals, weaknesses, unearned wealth. Unearned wealth मतलब जो शायद आपने अर्न भी करी हो, बट अनअकाउंटेड वेल्थ बेसिकली. जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए जो है वो कुछ मनी अपने बैंक से धीरे 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 करके 3-4 लाख अपने बैंक से निकाल लिए एक साल में. तो अगेन वो आपने घर पर रख लिए, या फिर आपने वो ऐसी खर्च में यूज़ कर लिए, घर खर्च में यूज़ कर लिए, जो भी. पर आपने जो है यूपीआई से पेमेंट नहीं करा, आपने अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करा, तो वो शो नहीं होगा फिर टैक्स में. सो यू आर फाइंडिंग अ लूप होल इन टैक्स, बट एट द सेम टाइम दैट्स अनअकाउंटेड वेल्थ. इस वजह से रेट भी पड़ती है बहुत से पॉलिटिशियंस के घर, क्योंकि दे हैव दैट अनअकाउंटेड वेल्थ. But I hope that demonetization helped. I really hope. So yeah, 8th house is again the house of chartered accountancy as well, because एक chartered accountant help करता है. chartered accountant को उसके client के बैंक अकाउंट का सब पता होता है, और वो उस चीज़ को सीक्रेट रखता है. तो यहाँ पर chartered accountancy भी मैं देख रही हूँ. You are keeping secrets, because 8th house also represents darkness and secrecy. So you're keeping secrets of other people. You're keeping secrets of other people like a chartered accountant does, or a lawyer. Lawyer भी जो है दूसरों के केसेस को सीक्रेट रखता है और उन लोगों को हेल्प करता है उस केस से बाहर निकलने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पर्सन सही है या गलत है. बट ही विल मैनिपुलेट द लॉ. द लॉयर विल मैनिपुलेट द लॉ, विल कीप सीक्रेट्स. सो यहाँ पर आप एक अच्छे लॉयर भी बनते हुए नजर आ रहे हो, वो भी चीज़ है.
And it also shows that if you are in medical, then you can even become a great surgeon, because 8th house represents surgery, so you can become a great surgeon as well, because again 8th house naturally Kalpurush में sign of Scorpio rule करता है. Sign of Scorpio is ruled by Mars. Mars sharp objects को represent करता है, तो जब हम surgeries करते हैं तो sharp objects भी use होते हैं, so you can become a great surgeon as well. And कहीं ना कहीं आपके लिए guidance भी है कि बिहाइंड द सीन्स जाके अगर आप काम करते हो तो आपको ज़्यादा गेन्स होंगे. प्लस गो टूवर्ड्स द रूट कॉज, गो टूवर्ड्स द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, कट पेनिट्रेट डीप इनटू समथिंग एंड गेट टू नो दैट सब्जेक्ट. एंड कहीं ना कहीं आप जुगाड़ करते हो, कहीं ना कहीं यू आर लाइक दिस मंकी who jumps on things, who tries to fix things up but never goes towards the root cause, never go towards the things which are lying beneath the surface. तो आपको beneath the surface जाके, behind the scenes जाकर भी जो है चीज़ें fix करने की ज़रूरत है. This is gonna help you in future in your career. यहाँ पर आपके लिए और क्या guidance है from this astrology deck. Planets, moon, Chandra, reflecting, nurturance, intuition, emotion, flexibility, fluidity, memory, introspection, love, Kapha planet and Sattva as well, because moon rules the sign of Cancer. Sign of Cancer is a Sattvic sign, because moon के बिना जो है हमारी अर्थ अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाती, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि मून टाइड्स जो है वो भी कंट्रोल करता है अर्थ पर. प्लस हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी हद तक वाटर से बनी है, तो अगेन मून कंट्रोल्स ऑल दीज थिंग्स. सो मून बिकम्स सात्विक ग्रह, इसके बिना लाइफ नहीं है. तो क्योंकि 8th हाउस भी है यहाँ पर और मून भी, ऐसा हो सकता है आपका मून डेबिलिटेटेड हो. इट कैन बी इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो और इट कैन बी इन द साइन ऑफ इट कैन बी इन द 8th हाउस वेयर मून फील डेबिलिटेटेड. डेबिलिटेशन का मतलब है मून अनकंफर्टेबल फील कर रहा है. मून जो है मन को रिप्रेजेंट करता है, तो मन अनकंफर्टेबल है, यानी यू विल डील विद एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इशूज एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लॉट ऑफ मूडीनेस, दैट्स देयर. बट if you have like Ketu aspecting this moon, let's say, then you also become more intuitive. But yes, even though अगर केतु का भी impact नहीं है, still moon in the 8th or sign or the sign of Scorpio, it will make you very intuitive. I also have my moon in 8th house. And you will say that do I deal with mental health issues? Yes. Absolutely yes. But I try to कंट्रोल दोज थिंग्स, बट हाँ ऐसा होता है एट टाइम्स वो चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पाती. देन आई स्लीप इट ऑफ और आई टॉक टू माई ओन मदर, आई डिस्कस थिंग्स, वट एवर मेक्स मी फील बेटर आई डू दोज थिंग्स लाइक सिंगिंग, म्यूजिक बिकम्स अ हीलिंग. और आई डू रनिंग, डिस्टेंट रनिंग, 2-3 किलोमीटर तक रनिंग करना विदाउट स्टॉपिंग. बिकॉज अगेन वट हैपन्स इज मून को कंट्रोल करना है तो बॉडी कंट्रोल में ले आओ. मून अगर मन थका हुआ नहीं है, बॉडी थकी हुई है, तो बॉडी रेस्ट लेना चाहेगी तो वो सो जाएगी. कई बार मन जब इधर हलचल में होता है तो वो सो भी नहीं पाता है, तो बॉडी को थकाना ज़रूरी है. सो ऐसे बहुत सी चीज़ें मून 8th हाउस को हम कंट्रोल कर सकते हैं. एट द सेम टाइम देयर आर अदर जपास एज वेल फॉर मून इन द 8th, एंड इवन सिंपल टेक्निक्स लाइक जस्ट वॉशिंग योर फीट every night, and whenever you eat your food, then say Vishnu Vishnu Vishnu. There are different japas as well. So easy भी japs जो है वो भी आप कर सकते हो. So yeah, what I'm trying to say here is that you have a disturbed mind here, you have anxiety, you have like you deal with mental health issues here, and most of your diseases are also psychosomatic. टेंशन हुई, एंजाइटी हुआ, एसिडिटी हो गई. सिंपली you have a test, acidity, vomiting, nausea, feeling nauseous, ये सब चीज़ें आपको होती होगी यहाँ पर, और ये अर्ली इन लाइफ ही शुरू होगी. Alright, so this is something which I'm getting. Moon can also be in the sign of Leo. That can also be the case. Moon can be in Magha, Purva Falguni, Uttara Falguni, so that can even happen here. And I already told you what happens in Magha, what happens in Purva Falguni, Uttara Falguni in the reading just now. So यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है?
गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? All right. So I see, wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. So of course आपने अपनी wishes wisely जो है manifest करनी है, और कहीं ना कहीं हम कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, स्पेसिफिकली यहाँ 8th हाउस और मून भी है, तो इट कैन हैपन आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे, वट एवर यू थिंक यू बिकम। सो ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में फिर ज़रूर होंगी। प्लस प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे ले अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए, इस चीज़ पर भी फोकस करना है कि क्या मुझे ये चीज़ चाहिए, आई नो दैट आई वॉन्ट दिस थिंग बट हाउ कैन आई गेट इट। तो वो जो पॉइंट 1 है उधर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, पॉइंट 2 पॉइंट 3 से नहीं, पॉइंट 1 से। और माना फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, पर हम उसे स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हो सकता है आपको शुरुआत में चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगे, बट एज यू अगेन टेक योर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, चीज़ें ठीक होने लग जाए, नॉर्मल होने लग जाए। बट येस, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर विशेज एंड डिज़ायर्स, एंड टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। दैट्स द गाइडेंस. And something more, I see moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Of course यहाँ पर जो है जुपिटर की बात हो रही थी, right? Jupiter is a preacher, teacher, advisor, counselor. Jupiter in water signs and I would say earth sign as well, water and earth sign. एक पर्सन का जुपिटर अगर ascendant में earth sign या water sign में, that person can become overweight quite easily. They can have a big body. So जुपिटर की बात भी हो रही थी, पुष्या की भी बात हो रही थी. पुष्या पर्सन लव टू ईट मिल्क प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा घी, एक्स्ट्रा बटर, पनीर इज देयर फेवरेट फूड, सो दैट कैन बी यू एज वेल. सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन, डू ईट वट एवर यू वांट टू ईट इट, बट इन मॉडरेशन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी बॉडी टाइप कुछ ऐसी है कि पानी भी जो है आपकी बॉडी को जो है ओवरवेट कर सकता है. सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि ये बॉडी जो है रथ है हमारी सोल का. हमारी सोल ने जो है जो काम करने हैं वो इस बॉडी के थ्रू करने हैं. अगर बॉडी फिट नहीं तो सोल का पर्पस पूरा नहीं होगा. सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज वेल. एक्सरसाइज करना, राइट खाना, राइट टाइम पर खाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. येस, मॉडरेशन में हर चीज़ ठीक रहती है, बट आई डू सी सम ऑफ यू पाइल नंबर 2 कैन बी ओवरवेट एज वेल ऑलरेडी. सो टेक केयर ऑफ योर weight, take care of your health. all right, so ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और गाइडेंस. ऑल राइट, आई सी स्टार गेजिंग. एक और चीज़ यहाँ पर मून है. मून रिप्रेजेंट्स मदर, राइट. तो इट्स ऑल्सो अबाउट मिल्क, एंड एज आई टोल्ड यू पुष्य इज ऑल्सो अबाउट मिल्क प्रोडक्ट्स. And it's the sign 8th house is there. So moon debilitated can even cause lactose intolerance. So if you have sinus issues, if you have these health issues, then चीज़ें थोड़ी नोटिस करो कि क्या ये मिल्क के प्रोडक्ट्स खा के या मिल्क पी के हो रहा है. इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया, एंड इन इंडिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड, मोस्ट ऑफ द फूड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट. तो बहुत जो मिल्क है वो हमारे अंदर जाता है, राइट. लैक्टोस हमारे अंदर जाता है, बट एट टाइम्स हमारी बॉडी उस लैक्टोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बिकॉज द लैक्टेज एंजाइम इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड वेल इनफ, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. सो दैट कैन इवन कॉज सम हेल्थ इशूज़ टू यू. सो अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो टेक केयर ऑफ कि ये हेल्थ इश्यूज हो कब रहे हैं. क्या ये मिल्क प्रोडक्ट खाने पीने के बाद हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना. एंड इवन इफ़ यू डोंट हैव योर मून डेबिलिटेटेड, स्टिल क्योंकि आपकी रीडिंग है, आप इसे सुन रहे हो, यानी कुछ ना कुछ तो आपका इस रीडिंग के साथ कनेक्शन है. मेरे साथ कुछ कनेक्शन है, इस टाइम पर आप ये सुन रहे हो,
तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पर हेल्थ इशू से डील कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली दोज इश्यूज कैन बी रिलेटेड टू मिल्क, कैन बी रिलेटेड टू लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि आप कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हो. सो इस चीज़ को ज़रूर नोट करो कि आपको हेल्थ इश्यूज कैसे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, क्या खा के हो रहे हैं. एंड द रीज़न कैन बी मिल्क, लैक्टेस एंजाइम और लैक्टोज समथिंग, राइट. सो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है. देन आई सी स्टार गेजिंग, which shows when you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. And then again यहाँ पर moon debilitation की बात हो रही थी. Moon gazing is again a remedy for moon debilitated. It's a very good remedy. So अगर आपका मून डेबिलिटेटेड नहीं भी है तो अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, बेटर करना है, सिचुएशंस में जो है आप फंसे हुआ महसूस करो, मून गेजिंग ऑल्सो बिकम्स गुड फॉर यू. इट बिकम्स गुड फॉर यू. स्टार गेजिंग भी प्लस मून भी स्टार्स के साथ है. सो मून गेजिंग बिकम्स वेरी गुड फॉर यू. पाइल नंबर 2, आपको क्लैरिटी मिलेगी, प्लस कहीं ना कहीं वो जो सिक्रीशंस है बॉडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी आपका ठीक होने लगेगा. Because again moon controls liquid in our body, and I think 70-80% our body is made up of water, liquid. So यहाँ पर अगर आप moon gazing करते हो, that's gonna help your moon, that's gonna help your mind. Moon is mind, and it's also and it also can help your relationship with the mother, because moon is mother as well. It can help your digestion, lactose intolerance. So moon gazing again become a good remedy for you for specifically right now as well. आगे चल के भी आप moon gazing करते हो तो आपको फ़ायदा होगा, बट अगर आप अभी प्रॉब्लम से डील करो, स्पेसिफिकली हेल्थ इशू से, कन्फ्यूजन माइंड में, स्टार गेजिंग, मून गेजिंग स्पेसिफिकली बिकम ग्रेट रेमेडी फॉर यू. ऑलराइट, तो इसमें तो कुछ काम भी नहीं करना है, सिर्फ मून को बैठ के देखना ही है, इतना तो कर ही सकते हैं, राइट. तो डू दिस थिंग. एंड या दैट वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. And do let me know in the comment section how this reading resonates with you, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the orange stone here, and yes, let's just get started with the reading. आपका जो करियर है, और आई शुड से आपको कौन सा करियर जो है चूज़ करना चाहिए, कौन सा पाथ अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर, कौन सा पाथ आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा सूट करेगा, क्या यहाँ पर टैरो की तरफ से इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, कौन सा पाथ, कौन सा करियर पाइल नंबर 3 को बेस्ट सूट करेगा. Alright, I see the wheel card. Okay, then I see the 4 of swords, then I see the 3 of swords, उसके बाद I see 3 of cups also in reverse. So 3 of swords, 3 of cups in reverse. बाकी जो cards है, they are in upright position. So यहाँ पर जैसा आप प्लान कर रहे हो चीज़ें, आपकी जो करंट एनर्जीज है पाइल नंबर 3 फर्स्ट, जैसा आप प्लान कर रहे हो अभी, मे बी वैसी चीज़ें शायद ना हो, कहीं ना कहीं रियलिस्टिक प्लान्स नहीं है, या फिर डिले हो रहा है चीज़ों में, और चीज़ें बदल रही है लाइफ में, चेंज आ रहा है लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लाइफ में. और आई डू सी जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं हो रहा है, वहाँ वैसी चीज़ें हो नहीं रही है करियर में. बट ये जो व्हील कार्ड है शो करता है एक फ्रेश स्टार्ट. इट शोज एंड ऑफ डिलेज एज वेल, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, ऑल्सो पॉजिटिव चेंज आना लाइफ में, ट्रैवल और न्यू व्हीकल लेना, ये चीज़ शो करता है. बट येस, व्हील कार्ड इज़ अबाउट कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रही है और पुरानी ख़त्म हो रही है. सो जैसा सोचा था शायद वैसी चीज़ें नहीं हुई और करियर में, एंड दैट ऑल्सो मीन इट मेक्स यू सैड, दैट्स देयर.
बट क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक हीलिंग का कार्ड है तो आप हील भी हो जाओगे. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एक हार्ट ब्रेक को शो करता है, बट नाउ इट्स इन रिवर्स, सो इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग टू इट. इट शोज कहीं ना कहीं आपका करियर हीलिंग में है. पाइल नंबर 3, जो पाइल नंबर 1 और 2 थी, दे वर लाइक बिजनेस लाइक पीपल, ए पर्सनैलिटी टाइप. वेयर इज पाइल नंबर 3, यू गाइज आर people of healing. You guys are healers, natural born healers. And it's like also because आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरे हो जिसने आपको एक हीलर बना ही दिया है, क्योंकि आपने इतनी सारी मुश्किलें फेस कर ली और कर रहे हो अर्ली इन लाइफ कि in future you are helping other people to live a better life, to help other people to live a balanced life. Some of you can even become yoga instructors, gym instructors, healthcare workers, healthcare professionals, and doctors here, Ayurvedic doctors also, all allopathic doctor also, Ayurvedic or homeopathy doctors, Reiki healers, pranic healers, and tarot readers. Even some of you can become astrologer, but astrology is more of a technical subject. It's not really about intuition, it's more of the technical work, that okay, this person have this conjunction, so this person is running this dasha, so this is going to happen, that is going to happen. Whereas tarot or these things are okay, ये card है current energy पर तो ऐसा होगा, and you should do this and you should do that. Tarot is about healing and guiding. Astrology is about seeing one's chart and telling कि ये तो होगा ही होगा, telling the destiny. But how to reach that destiny, कि आप ओके सक्सेसफुल तो हो जाओगे, ये चार्ट में दिख रहा है, बहुत अच्छी सक्सेस नज़र आ रही है, पर कैसे, वो एक टेरो ज़्यादा अच्छा बता सकता है. एंड यू आर दैट गुरु, यू आर गाइडिंग अदर पीपल, दैट आई सी. बिकॉज आप उन प्रॉब्लम से ऑलरेडी निकल चुके हैं जिन प्रॉब्लम से दूसरे लोग निकल रहे हैं, तो आपको पता है कि उससे कैसे निकला जाए. क्योंकि अगर आप उस प्रॉब्लम से निकले नहीं तो आप दूसरों को क्या गाइड करोगे. तो जैसे हम ये कहते भी हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं, एक साधु है, एक संत है, राइट, साधु है, उन्होंने खुद ने मैरिज नहीं करी पर वो दूसरे लोगों को मैरिज एडवाइस देते हैं. खुद कभी रिलेशनशिप में नहीं आए पर वो दूसरों को एडवाइस देते हैं, और ये चीज़ का लोग मजाक उड़ाते हैं कि इन्होंने तो वो चीज़ कभी करी ही नहीं, पर फिर ये कैसे एडवाइस दे सकते हैं. And the reality is that that person, that guru, they would have in their past life, they were in marriage. That's why they are the gurus in this day and age. They somehow can remember their past life experiences. That's why they have the solutions of those problems, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली. तो ऐसा भी है यहाँ पर कि अगर किसी प्रॉब्लम से आप कभी गुजरे नहीं भी हो, स्टिल आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन पता हो सकता है, बिकॉज इन द पास्ट यू वुड हैव गॉन थ्रू दैट प्रॉब्लम. यस, ऐसा होगा कि जो प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही है, लोग लेकर आ रहे हैं, वैसी प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, पर अगर आप उन प्रॉब्लम से नहीं भी गुजरे हो तो पास्ट लाइफ में आप उन चीज़ों से निकल चुके हो, तो आप अच्छी एडवाइस फिर भी दे सकते हो. And you are an old soul, pile number 3, old soul. You've already been in that corporate world. You've already been in the you've already been that A personality type who's always punctual, who's all about work and business and gains and profits, whatnot. You've already been that person, and in this lifetime, you want to help other people through your experiences, through your healing energies. And because it's 4 of swords here, it's about of course yoga, it's about, and यहाँ पर भी अगर आप देखो we have armor, और ये भी टूटा सा हुआ है, यानी यूज्ड है ये. आप उन प्रॉब्लम से, सिचुएशन से निकल चुके हो, जीत के निकले हो साथ में, या अगर हार भी गए पर निकल आए उस चीज़ से, राइट. तो आपको पता है कि क्या टेक्निक वर्क करेगी और क्या नहीं वर्क करेगी. आप ऑलरेडी वो वॉर जो है उससे निकल आए हो बाहर.
सो आप दूसरे लोगों को अपने लाइफ में जो उनके वॉर्स हो रही है उससे निकालने की कोशिश करोगे, गाइड करोगे. And because we have 3 of swords in reverse, so it is showing कि of course it is the card of heartbreak. Even though it's in reverse तो भी थोड़ा heartbreak शो करता है, बट फिर भी उस सिचुएशन से निकल आना बाहर. कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों को डिप्रेशन से बाहर लेकर आ सकते हो. Some of you can become great psychiatrists as well. Some of you can even work in asylums, jails even, giving other people a new life, a better life. क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कहे कि हमारे पास तो अब कोई पर्पस नहीं है जीने का, हम तो अब बस सरेंडर यानी डेथ करना, ये एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ, ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ. सो यू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ समहाउ because of your communication, because maybe you do some work of energy on them, but you bring the dead to life as well. क्योंकि अगर एक पर्सन जो है, एक डेथ तो है कि एंडिंग, उसने शरीर, उस आत्मा ने शरीर ही छोड़ दिया, और एक है जीते जी मर जाना, वो उससे भी बुरा है, वो उस बहुत ही बुरी सिचुएशन है. तो उस सिचुएशन से भी आप उस पर्सन को बाहर लेकर आ सकते हो, आपके अंदर ये एनर्जी है. एंड आई सी 3 of cups in reverse as well. सो कहीं ना कहीं आपको अपने सोशल इंटरेक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए. पाइल नंबर 3, इट कैन हैपन दैट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सो मच बिजी इन योर ओन वर्क, इन योर क्लाइंट्स, दैट यू फॉरगेट योर ओन सोशल लाइफ. एंड दैट्स नॉट गुड, बिकॉज अगर आप दूसरों को हील करते हो तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जहां पर आप खुद खोखला महसूस करोगे, एम्प्टी महसूस करोगे. That time will also come. In that time, everyone needs someone to be behind them. कि जब भी मैं गिरूं तो वो मुझे उठाए. We all want and desire that support. Because we are living in society, so friends, family come into play. But you can even go towards spirituality, pile number 3, and you can make God to be behind you, who uplifts you when you fall or won't let you to fall. But yes, it definitely shows 3 of cups shows कहीं ना कहीं आपका सोशल इंटरेक्शन कम है. दोस्त के साथ बात करना, फैमिली के साथ रहना, कजन्स के साथ खेलना, ये चीज़ें कम यहाँ पर इन फ्यूचर नज़र आ रही है. हो सकता है एट प्रेजेंट भी ये चीज़ें कम हो, बट फ्यूचर में तो बहुत ही कम हो गई है ये चीज़ें. क्योंकि यहाँ से आपने शुरू करा है, व्हील कार्ड से शुरू करा है, यहाँ पे आपने अपना करियर करा है, एंड व्हाट यू आर बिकमिंग इज दिस, एंड यू आर कटिंग योरसेल्फ फ्रॉम नॉर्मल थिंग्स. नॉर्मल थिंग्स क्या हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना दूसरे के साथ, और I don't really know what is normal. Honestly, I don't know what is normal because I feel that I'm already here. Yeah, I don't have many friends, so and I only talk to them when I want to or when I need something related to, I need an advice in astrology, because I do have friends who are astrologers, so I talk to them or we discuss things on astrology only. So yeah, I feel that I don't know what's normal is. I really do not know what's normal. So pile number 3, you have to find your normal. जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, नॉर्मल लोग गलतियाँ भी करते हैं. So you have to find your normal. What I want to say is that you need to find your normal, which makes you feel similar to other people. Because when you start doing something related to astrology, occult mysticism, or tarot itself, or Reiki healing, pranic healing, when you start doing these things, you isolate yourself from other people. और वो भी conscious effort नहीं होता अपने आप को isolate करने का, वो चीज़ हो जाती है क्योंकि हम normal लोगों से इतना जो है similarities नहीं देखते हम एक दूसरे में,
और अगर सिमिलैरिटीज़ नहीं है तो फिर आप बात किस चीज़ पर करोगे? कोई तो कॉमन सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ना, तभी तो आप एक दूसरे से बात कर पाओगे, कोई चीज़ डिस्कस कर पाओगे। अगर कॉमन चीज़ है ही नहीं कोई तो क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर ढूंढनी चाहिए नॉर्मल लोगों में और आप में, because you are, I'm not saying that you're abnormal or something, I'm saying that you're extraordinary, you're very extraordinary, and that too since birth ये चीज़ ऑलरेडी आप में थी। ये बात अलग है कि ये आपके ध्यान में लेट आई लाइफ में, बट इट वॉज ऑलरेडी देयर, यू ऑलरेडी फेल्ट दैट यू आर डिफरेंट, and when you are different, I know it becomes difficult to gel up with other people, but we are social beings, we are human beings, we have our social needs, we are not highly enlightened people, we are not, so we need social interaction, otherwise we are gonna go insane. So there is a need to have the social circle, or at least have one person, right? At least have one person or two person, like it's important. So I see that, but आपका करियर कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस पर है, इमोशनल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस पर है. And early in life you can try like many different careers, many different things, but you may not really find that emotional satisfaction from that career, and then you go towards this, healing side of life, mystical side of life. But yes, you can try many things as well before in life, कि वही कॉर्पोरेट जॉब करना, आईटी सेक्टर में वर्क करना, कॉर्पोरेट जॉब अगेन, एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना, बट देन यू आर लाइक नो, दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग. You won't feel that belongingness early in life. It can happen like that. You may not feel that you belong here. Even if you have a best job like a radiologist, radiotherapist, you're like, no, I don't belong in a hospital. You can feel that way. And then you're like, I want to learn tarot, I want to learn healing. But yes, I also see कुछ लोग आप में से डॉक्टर्स बन रहे हो और अच्छे सर्जन्स भी बन सकते हो, और रेडियोथेरेपी में जा सकते हो, रेडियोलॉजी में जा सकते हो, इन चीज़ों में जा सकते हो और इसमें काम कर सकते हो. दैट कैन हैपन. अगेन वो हीलिंग से रिलेटेड है. रेडियोथेरेपी में हम कैंसर से डील करते हैं, ट्यूमर्स निकालते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, राइट? हील ही कर रहे हैं हम. और आपने कभी रेडियो वेव्स देखी है कि भाई ये रेड और पिंक कलर की वेव्स है, रेडियो वेव्स ऐसे? नहीं, वो दिखती नहीं है. जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी, टैरो दिखता नहीं है, या एनर्जीज दिखती नहीं है, शुड से एनर्जीज नहीं दिखती है, उसी तरह ये रेडियो वेव्स भी नहीं दिखती है. तो कहीं ना कहीं रेडियोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, और स्पेसिफिकली अगर मुझे कहना हो तो एक्सरे और रेडियोथेरेपी, ये जो है इन जगहों पर भी आप जा सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो. दैट कैन हैपन, बट बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो आई सी दैट सम ऑफ यू विल ऑल्सो लीव योर these kind of jobs and go into this field. Many good astrologers are actually surgeons, and many good astrologers are also just high school graduates. So you will find different people. रंग बिरंगी दुनिया है. बट yes, यहाँ पर हीलिंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो ही चीज़ नज़र आ रही है. और कहीं ना कहीं आपको भी कोई सपोर्ट पीछे चाहिए होगा इन फ्यूचर, एंड आई डू सी दैट. सो लेट मी जस्ट पुल सम कार्ड्स फॉर यू फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक. ऑलराइट, यहाँ पर वेट, आपके लिए मुझे पहले यहाँ पर मास्टर कार्ड निकालना चाहिए, उसके बाद मैं डेक से, एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए गाइडेंस इन्फॉर्मेशन निकालूंगी. बट फर्स्ट यहाँ पर मास्टर कार्ड फाइल नंबर 3 के लिए. ऑल राइट, आई सी टेम्परेंस. टेम्परेंस कार्ड अगर आप किसी भी डेक में देखते हो तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि टेम्परेंस में एक पैर पानी के अंदर है और एक पैर लैंड के ऊपर है. वो बैलेंस को शो करता है हमेशा टेम्परेंस कार्ड. एंड हेयर वी ऑल्सो हैव द सिम्बॉलिज्म ऑफ क्राउन, किंग, एंड टेम्परेंस इज अबाउट जुपिटर, एंड जुपिटर ऑल्सो इज अबाउट बैलेंस करो चीज़ों को. और जुपिटर इज अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर. वो एक
काउंसलर, एडवाइजर है, एडवाइजर टू द किंग है. तो यहाँ पर again Jupiter is about advising and counseling, and here as well you're counseling and advising other people, you're doing consultations for other people, you're making you're telling them how to balance their life. तो यहाँ पर यही सेम एनर्जी जो है, जो मैंने वही बातें जो मैंने करी कि आप दूसरों को गाइड करो, एडवाइस दे रहे हो, कंसल्टेशंस दे रहे हो, सेम वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. उनकी लाइफ कैसे, दूसरों लोगों को अपनी लाइफ कैसे बैलेंस आउट करनी चाहिए, आप उसको उस बारे में गाइडेंस दे रहे हो. यही चीज़ यहाँ पर टेम्परेंस शो कर रहा है. सो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इंफॉर्मेशन है. ऑल राइट, सो आई सी 11th हाउस, recreation room, pleasure, karma. See, 11th house highest of trick house hai. It tricks us to do something which we are not that capable of, and it's also the house of devil. Yes, it's the house of devil as well, because it's a trick house, so it will trick us. The devil will say that भगवान का हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हें मनी, वेल्थ, मतलब वेल्थ, फेम सब लाके दूंगा, पर तुमने बस भगवान का हाथ छोड़ना. और जैसे ही वो हाथ छोड़ा, डेविल जो है खत्म कर देगा गेम ही आपकी. सो हियर इट इज अ गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 3, दैट नेवर लीव स्पिरिचुअलिटी, नेवर हैव दिस lack of trust on God, lack of faith on God, because हम सुनते हैं कई लोगों से कि हमारे साथ इतना बुरा हो गया, उस भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया, वो तो हमारा पिता है पर उसने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया. हम सुनते हैं लोगों को भगवान को ही कोसते हुए सुनते हैं कई बार, जो कि सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी. क्योंकि जो आज हम हैं वो हमारे कर्मश करके है. भगवान इस चीज़ में इंटरफेयर ही नहीं करता. भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा सोल्स के कर्मस में. वट एवर यू आर डूइंग, यू विल रीप द रिजल्ट्स ऑफ इट. यस, भगवान वो जो पेन है वो ज़रूर लेकर जा सकता है, वो ज़रूर लेकर जा सकता है, या कम कर सकता है एटलीस्ट, पर वो कभी भी आपकी डेस्टिनी में हेर फेर नहीं कर सकता है. So always have this faith on God, always have the faith in almighty authority, always have faith on universe. If you don't believe in God, if you have a universal belief of God's ki I believe in every God, then also just have faith somewhere. It's very important. And of course 11th house is about prosperity, it's about money. It's also about large organization and you becoming the head of that large organization. And it's about recognition. More so वैसे फर्स्ट हाउस और 10th हाउस यानी एरीज और कैप्रिकॉर्न आर अबाउट फेम, बट 11th हाउस भी हम कह देते हैं फेम का हाउस है, बट इट्स मोर सो अबाउट के फाइनेंशियल गेन्स होना बहुत सारे लोगों की वजह से, कमेटी की वजह से. दिस कार्ड टेल्स यू कि आपको जो है अपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको आपको ज़रूर फुलफिल करना चाहिए, पाइल नंबर 3. क्योंकि अगर आपने वो इच्छाएं पूरी नहीं करी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देन यू अगेन विल बी बॉर्न ऑन दिस भूमंडला, एंड फिर उसके बाद अब फिर से यहाँ पर पैदा होगे तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही चक्की पीसनी पड़ेगी, फिर से जो है इस बॉडी में बीमारियाँ वो सहन करनी पड़ेगी, फिर से रिलेशंस आपकी लाइफ में आएगी, आपको उन्हें निभाना पड़ेगा. तो लाइफ और डेथ की साइकिल से आप निकलोगे ही नहीं. तो यहाँ पर जो आपके जो आप चाहते हो चीज़ें करना, उन चीज़ों को ज़रूर करो. आपकी जो डिज़ायर्स है पहले जो आप क्रिएट ऑलरेडी कर चुके हो उनको ज़रूर फुलफिल करो, और न्यू डिज़ायर्स मत क्रिएट करो, बिकॉज यू हैव टू एंड द साइकिल हेयर ऑफ लाइफ एंड डेथ. You have to go towards moksha. Your highest of dharma here in this life is how to go towards moksha. How to get that moksha. How to not come in the cycle of death and rebirth again. How to cut this death and rebirth infinity sign. So this is something which is about your dharma. It's about the path your soul needs to follow. All right. एंड यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन.
Okay, I see South Node Ketu. So again, Ketu is it's a moksha karaka. Ketu is a moksha karaka. Ketu represents past lives as well. Ketu is that, hey, I'm done with the BS of society, I want to go to Himalayas and do tapasya. It's like that. Ketu do not want to deal with the BS of society again. Ketu is detachment, shamanism. And it's also about of course spiritual initiation and bankruptcy, इसलिए क्योंकि केतु, like if you ask a sadhu who lives in jungles, if you tell them कि if you ask them कि अगर आपने मुझे अपना एक सीक्रेट बता दिया तो मैं आपको you know lakhs of money दूंगा, वो साधु बिल्कुल भी आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, और मे बी दैट साधु इवन कर्स यू, बिकॉज उस साधु के लिए वो मनी मैटर ही नहीं करता है. एंड यहाँ पर भी आपके लिए यहाँ इंफॉर्मेशन ये है कि योर हाईएस्ट धर्मा इन योर लाइफ और द सोल्स पाथ फॉर यू इज कि आपको एक स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ में आना पड़ेगा. यू हैव टू फुलफिल योर हाईएस्ट ऑफ धर्मा हियर, and you will fulfill your wishes and desires. That's there, you will fulfill your wishes and desires, but you're not going to make new desires, and you will move towards spirituality here for sure. So this is something which I am seeing. And here as well, here in South Node Ketu यहाँ पर थमासिकनेस को जो है डाउनवर्ड्स मोशन में लेकर आने की बात कही है, और यहाँ पर रजासिक मोशन को अपवर्ड में. यानी ऐसा हो सकता है अर्ली इन लाइफ आप सारे अपनी विशेस एंड डिजायर्स पूरी करो, प्रॉपर थमासिक नेचर आपकी, मतलब रजासिक नेचर थमासिक में कन्वर्ट होती जाए, एंड देन यू स्टार्ट टू बिकम दैट स्पिरिचुअल पर्सन बिकॉज नाउ योर विशेस एंड डिजायर्स आर फुलफिल्ड. देन आप थमासिक नेचर से डाउनवर्ड मोशन में आ रहे हो, यानी रजासिक में आओगे, फिर सत्वा में आओगे. दैट विल हैपन, दैट पीक इज गोना हैपन. एंड देन एक पीक, एक तरह से आपको ऐसा हो सकता है मेंटली वो डिप्रेशन लेकर आए, वो पीक थमासिकनेस का, थमासिक नेचर का, बिकॉज इंटरनली और सात्विक, इंटरनली यू आर सात्विक, बट देन दैट पीक हैपन्स एंड देन योर मेंटल हेल्थ डिटोरिएट्स. And then you start moving towards spirituality. Then you start going from that tamasic nature to the rajasic and then to sattvic. So I'm seeing that. Let me just pull some more cards here. Okay. ज़्यादा ही cards निकल आए. I see 10th house. इट रिप्रेजेंट्स ऑफकोर्स ऑफिस, कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस, करियर को रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस, प्रोफेशन बेसिकली. इट रिप्रेजेंट्स रेपुटेशन एंड इवन फेम, सोशल पोजिशन, एंड इट्स अगेन गोइंग टूवर्ड्स रजास. एंड यहाँ पर आपको फेम मिलेगा अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ योर हीलिंग एनर्जीज. यू विल बी फेमस. आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट फेम लाइक अमिताभ बच्चन, बट यू विल बी फेमस फॉर योर whatever job you are going to do, whatever work you do, whatever career you have. You will get fame here, you will be powerful, you will be looked upon. I mean, people are going to look up to you to, you know, while making choices, they are going to ask you. And you're going to be very ambitious about your work, that's also there. But yes, fame comes here. Specifically, if you have moon or Rahu in the 10th, definitely fame is there. Sun in the 10th also will give fame. Sun in the 10th also gets its directional strength, basically gets its full digbala, meaning sun is powerful. Even if the sign placement is weak, but sun in 10th will always give higher digbala, will give strength, will give clarity, will give fame, recognition, and will make you an authoritative person. And let me just pull some guidance card for you, pile number 3. Okay, I see abundance. I see lotus here again. Brahma, the creator, sits on lotus. It's about knowledge as well. So here it's written, prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. So abundance is coming towards you. Blessings are showering upon you. Money is coming here. So that's also there. And lotus कहाँ उगता है? वो साफ जगह पर नहीं उगता, वो कीचड़ में उगता है. यानी आप
ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप हो इस पर्टिकुलर टाइम पर आप नेगेटिव एनर्जीज से सराउंडेड हो, पर उस नेगेटिविटी में आप एक पॉजिटिव ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो, एंड व्हेन यू नो ब्लूम, पीपल आर डेफिनेटली गोना गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। जैसे कि सारी जगह कीचड़ है, एक वहां पर लोटस खिला हुआ है, तो ऑफकोर्स किसी दूसरे पर्सन जो इस सीन को देख रहे हो, उस लोटस की तरफ उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा, और मन चाहेगा कि उस लोटस के पास जाऊं और देखूं कैसा है वो लोटस। सेम गोज विद यू, पीपल आर गोना गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज ऑफ just like it can be also looks, but more so it's about energies. It's also like you yourself can be very attractive in terms of looks, but your energy is more attractive than your looks. So I'm seeing that, and abundance of everything, abundance of fame, money, and because आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो दूसरों के मन से भी दुआ निकल रही है आपके लिए, तो अपलिफ्टमेंट आप फील कर सकते हो यहाँ पर। But abundance is there. Abundance is coming here for you. Then I see transformation. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. जैसा मैंने शुरू में कहा था, व्हील कार्ड आया है आपके लिए. Here is the wheel card, right? ये सबसे पहला आया था कार्ड, and I was saying that change is happening, new phase in your life is starting, transformation is happening. Accept this transformation, surrender to a transformation, that's the guidance, because it is happening for your highest of good. तो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, विश्वास रखो इस ट्रांसफॉर्मेशन पर, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा लगे कि ये तो ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ये गलत, नो, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ फॉर योर good, for your betterment. So remember this thing, but yes, transformation is coming in your life, and accept this transformation with open heart, open hands, and basically with a warm heart. Accept this transformation, that's very important, that's the guidance here. And यहाँ पर और क्या information है? और क्योंकि ये जो कार्ड्स हमने सारे निकाले हैं आपके करियर के लिए निकाले, तो करियर में ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, थॉट प्रोसेस में भी आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी चीज़ है, क्योंकि वॉट एवर यू थिंक यू अट्रैक्ट, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम. सो थिंक पॉजिटिव ऑफ कोर्स, तो आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे. So I see, believe in magic, as I've told you. See, जो एस्ट्रोलॉजी या टेरो है, वो it's also about like belief system. If one person does not believe in tarot, one person does not believe in astrology, तो most probably वो जो prediction है वो सही होंगी ही नहीं फिर, क्योंकि आपका उसमें विश्वास नहीं है, आपकी उसमें एनर्जी का इनपुट नहीं है. सो यहाँ पर अगेन बिलीव इन मैजिक मीनिंग बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टेरो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है या ये जो टूल्स है आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी लाइफ में. Open your eyes and see the magic that's all around you in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. You are magical too. So you are also part of tarot. You yourself are a part of tarot, occult, mysticism. You are not different from these things. You're part of these things. All right. So again यहाँ पर अगर आप यही सोच रहे थे कि मैं टेरो रीडिंग सीखूं, या मैं रेकी हीलिंग सीखूं, या मैं हीलिंग वाली चीज़ें करूं, एस्ट्रोलॉजी में जाऊं या ना जाऊं, क्या करना चाहिए मुझे, देन इट्स द टाइम you should, you know, this is a message for you. This whole reading was a message for you that it's the high time you enter in this realm, or in this side of life, in this mystical side of life. Believe in magic. It happens. It does. It really happens. So yeah, these are the messages for you, pile number 3. Do let me know in the comment section how it resonates with you, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.